Hello students, how are you? I hope you are doing good. In previous class we will study about connectors. Have you remembered it? We do connectors in our previous class. So before starting our class we will revise about connectors. So basically beta, what are connectors? Connectors are also called conjunctive words that link two similar elements in a sentence. The example of connectors are as, if, so that, etc. So beta, now in today's class we will do worksheet 12 which is related to the topic connector. So let's get started with our class. Okay. Our first question is, rewrite the following sentences in your notebook using the correct connectors from the boxes. So here you have to choose correct connectors to complete these sentences. Okay. So here the words or the connectors given to you are so that, because, since, as, therefore. Okay. So first sentence is, my parents threw me a party so that I was awarded a scholarship. What is the meaning of this sentence? My parents threw me a party so that I was awarded a scholarship. मेरे पेरेंट्स ने मुझे पार्टी थ्रू करी ताकि मुझे क्या मिल सके? स्कॉलरशिप मिल सके. अब इस लाइन का मतलब सो दैट लिखा हुआ है ना, तो सो दैट का मतलब लाइन का तो यही बन रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पार्टी थ्रू करी ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके. बट द करेक्ट कनेक्टर यूज हेयर इज एज. नाउ द प्रॉपर सेंटेंस इज, माई पेरेंट्स थ्रू मी अ पार्टी एज आई अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस नाउ? कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पार्टी थ्रू करी एज, क्योंकि मुझे क्या मिला था? स्कॉलरशिप मिली थी. ठीक है. नाउ सेकेंड सेंटेंस, दे क्लियर्ड द लैंड एज दे कुड डू फार्मिंग देयर. द करेक्ट सेंटेंस इज, दे क्लियर्ड द लैंड सो दैट दे कुड डू फार्मिंग देयर. उन्होंने उस ज़मीन को साफ करवाया सो दैट. Here you use connector so that instead of as. Okay. उन्होंने ज़मीन को साफ करवाया so that they could do farming there, ताकि वो वहाँ पर फार्मिंग कर सकें. Okay. Now move to next sentence. I went back home as I could help my father to water the plants. This sentence is totally wrong. Okay. The correct sentence would be, I went back home, therefore I could help my father to water the plant. मैं घर वापस गया, therefore इसीलिए मैं अपने फादर की हेल्प कर सका. किसमें? to water the plants. Okay. Now move to next. The washing machine broke down since my parents could not wash the clothes. Now the correct sentence is, my parents could not wash the clothes since the washing machine broke down. मेरे पेरेंट्स कपड़े नहीं धो सके तब कब से? जब से कि हमारी जो मशीन है क्या हो गई? टूट गई. broke down. Okay. The connector we use here is since. Right. Now next sentence, I decided to give money to the beggar so that he needed to go to the doctor. What is the meaning of this sentence? Read it again. I decided to give money to the beggar. मैंने डिसाइड किया कि मैं एक beggar मीन्स जो भीख मांगते हैं, भिखारी होते हैं, कि मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी भी beggar को मनी दूंगा so that he needed to go to the doctor. देखो ये जो यहाँ पर इन्होंने कनेक्टर लगाया है सो सूट नहीं कर रहा. यहाँ पे क्या आएगा? बिकॉज. ठीक है. I decided to give money to beggar. मैंने
पैसे दिए किसको, बैगर को दिए, बिकॉज ही नीडेड टू गो टू द डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाना चाहता था, उसे ज़रूरत थी डॉक्टर के पास जाने की. सो हेयर वी यूज़ कनेक्टर बिकॉज इंस्टेड ऑफ सो. हेयर सो कनेक्टर इज नॉट राइट. ओके, now move to our second question, fill in the blanks. Okay, fill in the blanks by choosing the correct connectors from the given options. You have to fill these sentences with correct connectors. Okay, now first question is dash the dog had not eaten in the morning, they are gulping down the food quickly. Which connector is used here, which is suitable connector here? As. Okay, as the dog had not eaten in the morning, they are gulping down the food quickly. Before you fill these connectors in the blank, you have to know the correct meaning of these connectors. So the meaning of as is while something is happening. Meaning of because is क्योंकि. Okay, therefore, as you know, इसीलिए. Since is used at a time after a particular time in past. Okay, now our second question is many students felt upset dash Miss Anam left the school. The three options given to you is because, therefore, so that. तो देखो इसका मीनिंग क्या बन रहा है. बहुत सारे बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स थे, फेल्ट अपसेट थे. अब देखो जो ये कनेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा सुटेबल है? बिकॉज का मीनिंग क्या है? क्योंकि. देयरफॉर मतलब इसलिए. सो दैट का भी यही मीनिंग होता है. देखो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपसेट थे, इसीलिए मिसेज एनम लेफ्ट द स्कूल. कुछ करेक्ट नहीं बन रहा है. सो दैट इस करके वो लेफ्ट कर जाएं स्कूल, ये भी करेक्ट नहीं है. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज. मैनी स्टूडेंट फेल्ट अपसेट बिकॉज मिस एनम लेफ्ट द स्कूल. बहुत सारे बच्चे अपसेट थे क्योंकि मिस एनम क्या थे, स्कूल को छोड़कर जा रहे थे. ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक टुडे डैश आई फेल्ट इरिटेटेड वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स. आज बहुत सारा ट्रैफिक है, इसीलिए मुझे इरिटेशन हो रही है कहाँ पर, स्ट्रीट पर चलने में. तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सा कनेक्टर सुटेबल है? देयरफॉर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसीलिए. ठीक है, इसीलिए. देयरफॉर आई फेल्ट इरिटेटेड वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स. मूव टू डी पार्ट. डैश आई रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम, आई वॉज अनेबल टू कैच द बस टुडे. Here you can see was is used. So this sentence is in past tense. Okay. So we use since here. Since I reached the bus stop on time, I was able to catch the bus today. अगर मैं बस स्टॉप पर टाइम पर पहुंच जाता तो मैं बस को पकड़ लेता. ठीक है. Now E part. Homa is going to meet her father. Dash she is taking some fruits with her. होमा जो है अपने फादर के घर जा रही है मिलने. द वर्ड्स यूज हियर आर बिकॉज, सिंस, देयरफॉर. क्योंकि पास्ट टेंस में यूज होता है सिंस, एंड देयरफॉर मतलब इसलिए. तो कौन सा कनेक्टर बिल्कुल सुटेबल है इस सेंटेंस में? यस, देयरफॉर. होमा इज गोइंग टू मीट हर फादर, इसीलिए therefore she is taking some fruits with her. इसीलिए वो कुछ फ्रूट्स लेकर जा रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन. Our third question is complete the sentences given below using the words from the boxes. Here some words are given to you. You have to fill these sentences with these words. Okay. First of all, we know the meaning of these words. Soaring. What is the meaning of soaring? The meaning of soaring is to fly high. ऊंची उड़ान भरना. ठीक है. To fly high. Glee. Meaning of glee. Happiness. उल्लास. किसी चीज़ की खुशी होना. Happiness होना. ठीक है. उल्लास होना. Excitement. Enrich. Meaning of enrich is
टू इम्प्रूव क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आना, उसे हम क्या बोलते हैं? एनरिच। ठीक है। ट्रेड, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड मतलब होता है चाल, किसी भी चीज़ की चाल, उसकी मूवमेंट कैसी है। अवेयरनेस, नेक्स्ट वर्ड इज अवेयरनेस। मीनिंग ऑफ अवेयरनेस, करेक्ट, हर कोई फैमिलियर है विद दिस वर्ड अवेयरनेस, राइट। नॉलेज, किसी भी चीज़ की नॉलेज होना, जागरूकता होना। चियरी, चियरी मतलब हैप्पी, स्माइलिंग, हैप्पी, जॉयफुल। ओके, so now we will continue our questions with our questions. First question is, we must have dash of what we are good at and what we are not. हमें इस चीज़ का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस। नॉलेज वर्ड इज रिलेटेड विद अवेयरनेस, सो वी मस्ट हैव अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी आर गुड एट एंड व्हाट वी आर नॉट। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में नहीं। नेक्स्ट पार्ट, द चिल्ड्रन वर फुल ऑफ डैश व्हेन दे हेयर्ड दैट दे विल गो फॉर अ पिकनिक। बच्चे ये सुन के बहुत ज़्यादा क्या होंगे कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। ऑब्वियस है, दे ऑल वर हैप्पी। ओके, तो द चिल्ड्रंस वर फुल ऑफ ग्ली। ओके, द मीनिंग ऑफ ग्ली इज हैप्पीनेस। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे व्हेन दे हियर, जब उन्होंने सुना कि वो कहाँ पर जाएंगे? पिकनिक पर जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू सी पार्ट। एवरी डे वी डैश द सेम रोड टू स्कूल, मतलब हम डेली एक ही रास्ते से चल कर जाते हैं, चाल, मूवमेंट आ गई ना। सो द वर्ड यूज हियर इज ट्रेड। एवरी डे वी ट्रेड द सेम रोड टू स्कूल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, एवरी इवनिंग आई लाइक टू वॉच द बर्ड्स डैश इन द स्काई। हर शाम मैं जब भी बर्ड्स को देखता हूँ स्काई में, क्या करते हुए? सोरिंग। ओके, बिकॉज द मीनिंग ऑफ सोरिंग इज टू फ्लाई हाई। जब भी मैं उनको, बर्ड्स को ऊंची उड़ान भरते हुए देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, सो वी यूज वर्ड्स हेयर लाइक सोरिंग, glee we have used, we used awareness. Okay, now tread is also used. Two words left, that is enrich and cherry. Now next sentence is, saying nice things to each other can dash our lives. Saying nice things to each other can enrich our lives. Okay, now move to next. It was a dash day because my friend gave me a thank you card. It was a cheery day because my friend gave me a thank you card. Okay, so students, you have to complete this work in your worksheet. Okay, and the homework for today is that you have to revise this worksheet. Okay, okay students, thank you, have a nice day.